اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کچھ باتیں میں نے پوچھی ہیں گزشتہ سبق میں سے۔ ایک بات میں چاہ رہا ہوں کہ چلیں وہ ریکارڈ ہو جائے۔ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ اگر وصیت کے بعد ورثہ ہے، پہلے کیا ہے؟ وصیت، اور وصیت سے مال پھر کدھر جاتا ہے؟ ورثہ تک۔ میں نے پوچھا کہ اگر وصیت ہوتی ہے 1/3 کی، اگر وصیت پہ مال ختم ہو جائے تو آگے ورثاء کو پھر نہیں ملے گا؟ تو میرے جیسے کچھ احباب تھے جنہیں تھوڑی سمجھ نہیں آئی، ذرا تھوڑے سے ڈھیلے تھے، یا شاید جو ہے وہ بھی راوی وغیرہ پڑھ کے آئے ہوں گے تو مصروف ہوں گے، ادھر ادھر توجہ ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ جی مال جو ہے وہ آگے ختم ہو گیا تو ختم۔ لیکن کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ماشاءاللہ آپ سب جیسے تھے، انہوں نے فوراً بوجھ لیا اور جان لیا کہ اگر 1/3 جو ہے وہ وصیت ہے تو 2/3 تو بچے گا ہی بچے گا نا۔ 1/3 سے زیادہ کی تو وصیت جائز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو پھر آگے جائے گا ہی جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب مال وصیت پہ چلا گیا تو ورثاء پہ بھی جائے گا ہی جائے گا، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وصیت سے آگے مال نہ جائے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وصیت تو کل مال کی ہوتی ہی نہیں، وصیت ہوتی ہے 1/3 کی، 1/3 کی۔ اچھا جی، تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، کل ہم نے پڑھا تھا ارکان الارث، آج ہم پڑھیں گے اسباب الارث۔ اسباب الارث، اسباب الارث سے پہلے سبب کی تعریف جاننا ضروری ہے۔ سبب کی تعریف جاننا ضروری ہے۔ سبب کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی بتا سکتا ہے کہ سبب کیا ہوتا ہے؟ ایک اور سبب ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نا میرا بڑا سبب لگا ہوا ہے، یہ وہ سبب نہیں ہے، یہ وہ آپ والا سبب نہیں ہے۔ آپ عموماً اردو میں کہتے ہیں نا جی اللہ کا شکر ہے اللہ نے بڑا سبب بنا دیا، تو یہ وہ والا سبب نہیں ہے، یہ اصطلاح ہے سبب۔ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اینی ون کسی کو پتا ہو؟ میں ایک دفعہ ہاتھ نیچے کر دیتا ہوں، جس کو پتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کر لے تاکہ ہم سبب کسے کہتے ہیں؟ سبب کی تعریف ہے، یہ یہاں پہ آپ سبب کی تعریف دیکھیں، سبب کی تعریف ہے وجود الشیء بے وجود ہی، وجود الشیء بے وجود ہی، وجود الشیء بے وجود ہی، کسی چیز کا وجود ہوتا ہے اس کے وجود کی وجہ سے۔ سبب کسے کہتے ہیں؟ سبب وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر یہ ہو تو دوسری چیز ہوتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو دوسری چیز ہوتی نہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ نصاب۔ اب نصاب سبب ہے، اب نصاب کیا ہے؟ سبب ہے۔ نصاب ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اگر نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ
नहीं होगी, ज़कात नहीं होगी। ठीक है, तो सबब किसे कहते हैं? जिसके होने से अगली चीज का वजूद हो। ठीक है, तो ये होता है सबब। तो असबाबुल इर्स, तीन सबब हैं, इन तीनों में से कोई होगा तो विरासत होगी। इन तीनों में से कोई सबब होगा तो विरासत होगी, अगर इन तीनों में से कोई नहीं होगा तो विरासत नहीं मिलेगी। जैद, जैद फोत हो चुका है। जैद क्या हो चुका? मुतवफ़ा, फोत हो चुका। आपका इन तीनों में से किसी एक का ताल्लुक होना जरूरी है जैद के साथ। नसब, आपका जैद से नसब के एतबार से ताल्लुक है तो आपको विरासत मिलेगी। अगर नसब नहीं है, निकाह है, तो आपको विरासत मिल सकती है। और नसब भी नहीं, निकाह भी नहीं, वला है, तो आपको विरासत मिल सकती है। लेकिन अगर नसब भी नहीं, निकाह भी नहीं, वला भी नहीं, तो फिर आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। बात समझ आ गई? तो सबब कितने हैं जी? तीन। पहला है जी नसब। व्हाट इज द नसब? नसब क्या है? तो नसब से मुराद खूनी रिश्ता, कराबतदारी। इससे मुराद खूनी रिश्ता और कराबत है जो वारिस और मुवर्रिस के दरमियान विलादत की वजह से होता है। ये रिश्ता मैयत की औलाद, बेटा बेटी, पोता पोती, मैयत के अबाओ अजदाद, बाप दादा, माँ दादी नानी, मैयत के भाई बहन, चचाओं पर मुश्तमिल होता है। ये कितने उस पर मुश्तमिल होता है? लिखे, तवज्जो से लिखे। बनुवत, बनुवत, अबुवत, बनुवत, अबुवत, लिख रहे हैं साथ साथ। बनुवत, अबुवत, अखुवत, अमूमत, ये चार वजूहात होती हैं नसब की। कितनी जी? चार। याद हो गया सबको? बनुवत, अबुवत, अखुवत, अमूमत। बनुवत से क्या मुराद होता है? बेटे बेटी, पोते पोती। ठीक है। अबुवत से मुराद बाप दादा, माँ दादी नानी। डिटेल तो आगे आएगी ना। अखुवत से मुराद भाई बहने, भाइयों के बेटे, भाइयों के बेटे, ये अखुवत में आ जाता है। और अमूमत में चचा, चचाओं के बेटे। तो ये चार वर्ड याद रहेंगे, बनुवत, अबुवत, अखुवत, अमूमत। ये चार वर्ड भी याद रखने हैं और इनकी ये तरतीब भी याद रखनी है। इनकी ये तरतीब भी याद रखनी है, तरतीब नहीं भूलनी। पहला नंबर है होता है इसका, अगर ये ना हो तो दूसरा नंबर होता है इसका, अगर ये ना हो तो तीसरा नंबर होता है इसका, अगर ये ना हो तो चौथा नंबर होता है इसका। पहला नंबर बनुवत का, दूसरा नंबर अबुवत का, तीसरा नंबर अखुवत का, चौथा नंबर अमूमत का। कहाँ? ये मैं आगे बताऊंगा। और खुद से ना आइडिया लगाने शुरू कर दीजिएगा, ये मैं आगे बताऊंगा किधर। तो बहरहाल जी ये हो गया नसब। ये क्या हो गया? नसब। इसके बाद आगे आ जाओ जी निकाह। क्या जी? निकाह।
اس سے مراد وہ نکاح ہے جو عقد صحیح کے ذریعے واقع ہوا ہے، وہ نکاح جو عقد صحیح کے ذریعے واقع ہوا ہو، لہذا جو عقد غلط ہو وہ نکاح ہوتا نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سبھی کو پتا ہے، بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، ہم اپنے ٹاپک کی طرف رہتے ہیں، بات آگے نکل جائے گی۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں، نکاح تمتع، ٹھیک ہے، نکاح حلالہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی باطل عقد، لڑکی لڑکا بھاگ کے شادی کر لیں خود سے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہوتا ہے۔ نکاح تمتع ابتدائی اسلام میں جائز تھا، بعد میں منع کر دیا گیا۔ ابتدائی اسلام میں یہ جائز تھا کہ اگر آپ کسی بھی سفر پر گئے ہیں، کسی بھی علاقے میں گئے ہیں اور آپ کے اہل خانہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انسان کی جس طرح جسمانی کھانے پینے کی ضروریات ہے، اسی طرح انسان کی ایک فطرتی اور طبی ضرورت ہے جسے آپ جنسیت کی ضرورت کہہ سکتے ہیں۔ تو شریعت نے اجازت دی تھی کہ کسی بھی عورت سے 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، مہینے کے لیے طے کر لو اور اس سے نکاح کر لو۔ نکاح متع جس کو کہتے تھے، تمتع میں نے کہا نا، نکاح متع، آپ اس کو نکلیں نکاح متع۔ اب یہ حرام ہے، لیکن اللہ اکبر، لیکن کی طرف نہیں جاتے، بات آگے چلی جائے گی۔ نکاح حلالہ، نکاح حلالہ، جو معروف حلالہ ہے وہ کس کو معروف جو حلالہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ کانٹریکٹ بیس کسی سے نکاح کرے۔ کیا نکاح کہ جی کیا نکاح کرے کہ 5 دن کے لیے تم مجھے اپنے پاس رکھو گے، پھر مجھے طلاق دے دو گی اور پھر میں پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ تو یہ غلط نکاح ہے۔ صحیح نکاح، اس پہ اور بھی کافی ساری ڈیٹیل ہے، بہرحال میں نے اشارہ کر دیا۔ تو اس سے مراد وہ نکاح ہے جو عقد صحیح کے ذریعے واقع ہوا۔ کیا مطلب جی عقد صحیح کے ذریعے واقع ہوا؟ گواہ موجود ہو، گواہ کیا ہو؟ موجود ہو۔ اگر آواز کچھ ڈسٹرب کر رہی ہے تو ریکارڈنگ کے اندر آواز انشاءاللہ صاف ہوگی، تو ریکارڈنگ سن لیجئے گا، کیونکہ شاید کہ آج نیٹ ورک کا کچھ ایشو ہے یا کیا مسئلہ ہے، پہلے بھی کلاسز میں اس طرح کی شکایت آتی رہی ہے۔ اچھا جی، تو عقد صحیح سے کیا مراد ہے جی؟ کہ گواہوں کی موجودگی میں ولی کی اجازت کے ساتھ ایجاب و قبول ہو، حق مہر ہو، نکاح ہو جائے، چاہے خلوت اور مجامت حاصل نہ ہوئی ہو، چاہے خلوت اور مجامت حاصل نہ ہوئی ہو۔ اس میں خامند اور بیوی میں سے کسی ایک کی وفات کے بعد وہ ایک دوسرے کی جائیداد کے وارث بنتے ہیں۔ یہ ممکن ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں ہمارے ایک دوست تھے، ان کے کزن کے ساتھ ایسا ہوا کہ شادی کی، رخصتی کر کے گھر لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، تو کوئی بجلی کے بٹن کو جو ہے نا وہ بند یا آن کرنے لگے یا پنکھا وغیرہ کچھ چلانے لگے تو کرنٹ لگا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ان کی رخصتی ہو چکی تھی، نکاح ہو چکا تھا، لیکن خلوت اور ازدواجی تعلق اگرچہ قائم نہیں ہوا تھا، لیکن بیوی ان کی وراثت کی وارث بنے گی۔ تو یہ دوسرا تعلق ہے۔ یہ کیا ہے؟ دوسرا
ताल्लुक है। इसके बाद आगे आ जाए जी, ये दरमियान में कहते हैं जी मुतलका की मीरास। हम असबाब पढ़ रहे हैं, हम मुतलका के बारे में बाद में देखेंगे। तीसरा सबब है जी ये पेज नंबर 44 है। तो तीसरा सबब है वला। वला क्या होता है जी? वला वला अभी तो वला वाला सिलसिला मौजूद नहीं है। अभी वला वाला सिलसिला मौजूद है नहीं है भाई। वला एक इस्तिलाह है, आप इसको दोस्ती के माने में ना लेकर जाए। वला वो तो लुग़वी माना है ना वला का, दोस्ती। लेकिन अहले इल्म के यहाँ वला का माना लुग़वी नहीं इस्तेमाल होता। वला का एक खास माना है। वला किसे कहते हैं? मालिक और गुलाम के दरमियान ताल्लुक, उसे क्या कहते हैं? वला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वला कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैद गुलाम था। जैद क्या है? गुलाम है। जैद क्या है जी? गुलाम है। तो मैं जैद को आजाद कर देता हूं, उसे खरीदता हूं और खरीद कर उसे क्या कर देता हूं जी? आजाद। अब मेरे और जैद के दरमियान एक ताल्लुक कायम हो चुका है, जिस ताल्लुक को कौन सा ताल्लुक कहते हैं? लिख कर बताएं, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। आप कितने लोग हैं? 58 लोग हैं। तो इसका मतलब है कि 58 मैसेज आने चाहिए। जैद और मेरे दरमियान क्या ताल्लुक बन जाएगा? वला का ताल्लुक बन जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर जैद फोत होता है कल को, कल कला जैद क्या हो जाए? जैद फोत हो जाए और जैद का कोई वारिस ना हो, तो मैं जो उसका मालिक और आका था, जिसने उसको आजाद किया था, तो उसकी सारी विरासत किसके पास आ जाएगी? मेरे पास आ जाएगी। तो ये तीसरा ताल्लुक है वला। वला से मुराद वो कराबत है जिसको इस्लाम ने आका और उसके आजाद करदा गुलाम के दरमियान बनाया है। आजाद करदा गुलाम की वफात के बाद वो आका उस गुलाम की जायदाद का वारिस होगा, बशर्ते के गुलाम का कोई शरई वारिस मौजूद ना हो। शर्त है कि गुलाम का कोई और वारिस ना हो। तब अगर और वारिस है तो फिर वो वारिस बनेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये दो अहादीस लिखी हैं, जैसा कि हदीस से बरीरा में आया है, इन्नमल वलाउ लिमन आताका। इन्नमल वलाउ लिमन आताका। वला उसके लिए होती है जो आजाद करता है। और आपने फरमाया अल वलाउ लुहमतुन का लुहमतिन नसब। अल वलाउ लुहमतुन का लुहमतिन नसब। ये अरबी इबारत लिखी होती है, इनकी जबर जेर गलत हो सकती है, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो जबर जेर मैं सही बोलूंगा। तो ये ना सोचिएगा कि उस्ताद गलत बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ गलत होता है। हम गलत नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए कि हमें क्यों नहीं गलत बोलेंगे? इसलिए कि हमें ग्रामर आती है। क्या आती है? ग्रामर आती है। जब ग्रामर आती हो तो फिर बंदा अरबी पढ़ने में गलती करता नहीं, इल्ला के कोई शादो नादर सबकत लिसानी हो जाए या कोई मुश्किल इबारत हो, वो एक अलग बात है। बहरहाल इसका ये मतलब तो नहीं होता कि इंसान से गलती का इम्कान ही नहीं, लेकिन अमूमन एक बात है। तो फिर ये अहादीस तो पढ़ा 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 के
ان کی جو عربی عبارات ہیں وہ تو زبان پہ بیٹھی ہوتی ہیں. تو انما الولاء لکھنے والا کوئی عام ہی شخص ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات غلطی کر دیتے ہیں. ویسے میں نے غور نہیں کیا. انما الولاء لمن اعتق الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب. اچھا جی، یہ جو پہلی حدیث ہے ولا اس کے لیے ہے جس نے آزاد کیا. کچھ لوگوں کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب جی، ولا اس کے لیے ہے جس نے آزاد کیا. اصل میں بریرہ غلام تھی. بریرہ کیا تھی؟ غلام تھی. اور بریرہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ مغیث سے. بریرہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ مغیث سے. تو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بریرہ ان کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میں اپنے جو میرے آقا ہیں نا ان سے میری بات ہو گئی ہے، تو وہ مجھے آزاد کرنے کے لیے ایگری ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں تو وہ مجھے آزاد کر دیتے ہیں. تو اما جی عائشہ کہنے لگی کہ میں تمہیں سارے پیسے دیتی ہوں جتنے تمہارے پیسے بنتے ہیں نا. یعنی اگر تمہاری قیمت بنتی ہے بالفرض اس زمانے کے حساب سے 2 لاکھ تھی، تو میں 2 لاکھ کے 2 لاکھ پورے دیتی ہوں. بریرہ کہنے لگی لیکن میرے آقا یہ کہتے ہیں کہ ولا ہماری ہی رہے گی، یعنی تیرا ہمارا تعلق ولا والا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ولا کیوں؟ ولا تو اس کی ہوتی ہے جو پیسے بھرتا ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے بھر کے چھڑوا اس کو آزاد کروا رہی ہیں، تو ولا اس کے لیے ہے جس نے آزاد کیا. مغیث جب کوئی غلام آزاد ہو جاتا ہے نا جی، ایک فقہی مسئلہ بھی سمجھ رہے ہیں. جب کوئی غلام آزاد ہو جائے اور اس کا شوہر غلام ہی ہو، تو آزاد کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس سے نکاح توڑ لے. آزاد کو حق ہوتا ہے. تو بریرہ نے مغیث سے تعلق توڑ لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیث کی سفارش بھی کی تھی کہ مغیث آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعلق نہ توڑیں. تو بریرہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مشورہ ہے. تو کہا جی نہیں، میں تو مشورہ تو پھر ظاہری بات ہے مرضی ہوتی ہے نا. تو یہ پورا واقعہ ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے اور صحیح بخاری میں تفصیل اس کی موجود ہے. اچھا جی، تو 3 نسب کی سبب کی 3 قسمیں ہو گئی. سبب 3 بیان ہو گئے. آگے چلیں گے. شروط الارث. شروط الارث شرط. شروط الارث شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ شرط کی تعریف ہوتی ہے وجود الشیء بوجودہ و عدم الشیء بعدمہ. عربی کی تعریف اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ نہ یاد کرنا چاہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھا دیتا ہوں. شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ شرط پائی جائے تو چیز پائی جاتی ہے، اگر شرط نہ پائی جائے تو چیز نہیں پائی جاتی. شرط موجود ہو تو وہ کام ہوتا ہے، اگر شرط موجود نہ ہو تو پھر وہ چیز بھی نہیں ہوتی. تو وراثت کی کتنی شرائط ہیں؟
विरासत की 3 शराइत हैं। अच्छा जी, तो कितनी शराइत हैं जी? 3। पहली शर्त है जी, मुवर्रिस की मौत का हकीकी तौर पर वाक़े होना या हुक्मी तौर पर। पहली बात क्या है जी? मुवर्रिस की मौत हकीकी तौर पर या हुक्मी तौर पर साबित हो जाए। मुवर्रिस की मौत साबित हो जाए, चाहे हकीकतन हो चाहे हुक्मन हो। मुवर्रिस मुवर्रिस की मौत साबित हो जाए, लिखें लिखें, चाहे हकीकतन चाहे हुक्मन, लिखें। मुवर्रिस की मौत साबित हो जाए, चाहे चाहे हकीकतन साबित हो और चाहे हुक्मन साबित हो। मैंने अभी पूरा पढ़ा लिया है कि आप सवाल कर रहे हैं कि हुक्मन का क्या मतलब है। अभी तो बात शुरू हुई है ना। तो मुवर्रिस की मौत साबित हो जाए, चाहे हकीकतन साबित हो चाहे हुक्मन साबित हो। हकीकतन का क्या मतलब? हकीकतन का मतलब है कि आपके सामने मैयत मौजूद है, आपने उसको दफनाया है, आपने उसको दफनाया है। मिसाल के तौर पर जैद का वालिद जो है, वालिद ये फोत हो गया, तो जैद ने उसकी मैयत को कफन भी दिया, दफन भी दिया, दफनाया भी। तो ये है हकीकतन मौत। हुक्मन मौत का क्या माना है? हुक्मन मौत का क्या माना है? तो हुक्मन मौत का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर जैद जैद नामी एक शख्स था और ये क्या हो गया? गुम हो गया, गुमशुदा है। ये क्या है? गुमशुदा है, मिल ही नहीं रहा, पता ही नहीं किधर गया है, पता ही नहीं किधर गया है। लेकिन इसकी जो जायदाद है वो 10 लाख की है। कितने की है? बिलफर्ज 10 लाख की है। अब 1 साल गुजरा, 2 साल, 5 साल, 10 साल गुजर गए। वरासा अदालत में जाते हैं और अदालत में ये केस दायर कर देते हैं। तो काजी जो है, जज जो है, वो शवाहिद को, कराइन को, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला कर दे कि जैद क्या हो चुका है? फोत हो चुका है। जैद क्या हो चुका है? फोत हो चुका है। वो क्या फैसला कर दे कि जैद क्या हो चुका? फोत हो चुका। अब आप कहेंगे इसकी मिसालें, बड़ी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर एक जुलूस में जैद गया। जैद किधर गया? जुलूस में गया, और वहां क्या हो गया? बम धमाका हो गया, कई लोग मर गए, चिथड़े, शनाख्त ही नहीं हुई, किसी की कोई शनाख्त नहीं हो रही। अब जैद के मरने की कोई दलील नहीं है, यानी मैयतों में। अब जारी बात है, जब चीथड़े ही चीथड़े हो गए तो अब क्या पता कौन फोत हुआ है कौन नहीं फोत हुआ। लेकिन जैद नहीं मिल रहा। 10 दिन हो गए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना हो गया। काजी बिल आखिर हालात को देखते हुए ये फैसला देता है कि जैद भी बम धमाके में क्या हो चुका? फोत हो चुका। क्यों? इसलिए कि मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, जराए नकलो हमल जो है वो आसानी से मुयसर है। अगर जैद जिंदा होता तो वो घर आ जाता। तो हालात, कराइन, शवाहिद ये बताते हैं कि जैद फोत हो चुका। तो अब जैद को मरे हुए आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन ये हुक्मन उसकी डेथ हो चुकी। इसको क्या कहेंगे? हुक्मन क्या हो गई? डेथ हो गई।
तो मुवर्रिस की मौत का हकीकी तौर पर वाक़ होना या हुक्मी तौर पर, हकीकी मौत तो जाहिर है कि लोग खुद अपने हाथों से मैयत को दफनाते हैं, और हुक्मी मौत काजी के मौत का हुक्म सादर करने से होती है। इसकी मिसाल गुमशुदा शख्स है, जब काजी उसकी मौत का फैसला सादर कर दे तो फिर उस शख्स को मुर्दा तस्वुर किया जाएगा और उसकी जायदाद को उसके वारिसों में क्या कर दिया जाएगा, तकसीम कर दिया जाएगा। दूसरा, वारिस की जिंदगी का सबूत, वारिस की जिंदगी का सबूत के मुवर्रिस की मौत के वक्त वो जिंदा था, चाहे चंद मिनट के लिए ही जिंदा रहा, यह जिंदगी हकीकी तौर पर हो या हुक्मी तौर पर। वारिस जिंदा होना चाहिए। वारिस क्या होना चाहिए? चाहे हकीकतन जिंदा हो और चाहे हुक्मन जिंदा हो। चाहे हकीकतन जिंदा हो, चाहे क्या हो? हाँ जी। दूसरी दूसरी क्या है जी? दूसरी शर्त क्या है कि वारिस जिंदा होना चाहिए। वारिस क्या होना चाहिए? जिंदा, चाहे हकीकतन जिंदा हो चाहे हुक्मन जिंदा हो। हकीकतन जिंदा का क्या मतलब? हकीकतन जिंदा का मतलब कि जिंदा है, सामने है, सब उसको देख रहे हैं। हुक्मन जिंदा का क्या मतलब है? तवज्जो करें, जैद फोत हो गया, जैद क्या हो गया? फोत हो गया। जैद के फोत होने से उसकी जोजा हामिला है। हमल कितनी देर का है? 3 माह का या 5 माह का। तो अब जैद का बेटा या बेटी यानी जैद की औलाद जो कि उसकी बीवी के पेट में है, अगरचे वो जिंदा नहीं है, दुनिया में नहीं आई, लेकिन वो हुक्मन क्या है? जिंदा है, मां के पेट में जो है। तो 9 माह के बाद विलादत हो जाएगी, 8 माह के बाद तो फिर वो आ जाएगा। तो ये बात ज़हन में रखें, अगर कोई शख्स फौत होता है, उसका कोई वारिस हुक्मन भी जिंदा हो यानी वो हमल हो, तो विरासत तकसीम नहीं होगी जब तक वो वारिस दुनिया में ना आ जाए। बात समझ आई को नहीं आई? मसलन जैद फोत हो गया, जैद क्या हो गया? जैद फोत हो गया, इसकी जोजा जो है वो हामिला है, इसकी जोजा जो है वो क्या है? हामिला है। अब विरासत नहीं तकसीम होगी, ये हमल बेटी हो तो जायदाद और तकसीम होगी, जायदाद के मामलात और होंगे, और अगर ये बेटा हो तो पांसा ही पलट जाएगा, बिल्कुल विरासत अलग हो जाएगी, एक नया मोड़ ले लेगी विरासत। बेटी हो तो अलग, बेटा हो तो अलग। लेकिन अगर ये हमल दुनिया में आने से पहले पहले ही, हालते हमल में ही हमल जो है वो क्या हो जाए? हालते हमल में ही हमल गिर जाए, हालते हमल में ही हमल क्या हो जाए? गिर जाए, तो फिर विरासत की तकसीम और होगी। तो बात समझ रहे हैं? अगर हालते हमल में हमल गिर जाए तो फिर विरासत की तकसीम और है, अगर पैदा होने वाली बेटी हो तो विरासत की तकसीम और है, और अगर पैदा होने वाला बेटा हो तो विरासत की तकसीम और है। और अगर ये बच्चा फौत हुआ लेकिन पैदा होने के
5 मिनट बाद फोत हुआ। अब विरासत तकसीम होगी। अगर ये बेटा है तो फिर इसको भी विरासत मिलेगी, अगर ये बेटी है तो फिर इसको भी विरासत मिलेगी। ठीक है जी। क्लियर? आगे आ जाएं जी। तीसरी शर्त, वारिस बनने के लिए उस सबब की पहचान जरूरी है जिसकी बिना पर वो वारिस बन रहा है। यानी वारिस बनने के लिए जो 3 सबब हैं, उन असबाब में से कोई एक होना चाहिए, या नसब हो, या निकाह हो, या वला हो। यानी वारिस का मुवर्रिस के साथ क्या हो जी, ताल्लुक हो, चाहे वो नसब का ताल्लुक हो, चाहे वो निकाह का हो, चाहे वो वला का हो। अब बात समझ आ रही? कितनी चीजें हो गई? 3। मुवर्रिस का मरा होना साबित हो, और वारिस का जिंदा होना साबित हो, और ताल्लुक हो। 5 मिनट वाला ये था कि अगर वो हमल पैदा हुआ 5 मिनट बाद फोत हो गया तो उसको फिर वारिस तस्वुर किया जाएगा। ये मैंने बताया था। अच्छा जी, इसके बाद है मवानी उल इर्स। इसके बाद क्या है? मवानी उल इर्स। मवाने का क्या मतलब है? माने, माने की तारीफ लिखें। माने का मतलब होता है आदामुश्शई बिवुजूदिही, इसके पाए जाने से चीज ना पाई जाए। आदामुश्शई बिवुजूदिही, अगर ये पाया जाए तो फिर वो चीज पाई जाती नहीं। मिसाल जैसे देखें जी, जवाल का वक़्त है, जवाल का वक़्त है। अब ये माने है, किस चीज का माने है? माने सलात। अगर जवाल का वक़्त हो तो नमाज हो सकती नहीं। जवाल का वक़्त हो तो नमाज हो सकती है? नहीं। ये किसी ने सवाल किया कि अगर बच्चा मुखन्नस हो, भाई आगे आएगा, आज ही तो नहीं ना सारी विरासत पढ़नी। सिर्फ सबक से मुतालिका सवाल किया करें, सबक से इजाफी जो हमारी बहस चल रही है उसके मुतालिका कोई बात है तो वो पूछें, जो बहस नहीं है उसके मुतालिका ना पूछें, क्योंकि वो आगे आएगा। आपके जहन में जो सवाल पैदा हो सकता है उसका जवाब आगे आएगा। अच्छा जी, मवानी उल इर्स, कलिमा मवाने माने की जमा है। ये ऐसा वसफ है कि अगर किसी शख्स में पाया जाए तो वो विरासत से महरूम हो जाएगा, खा इसमें वारिस बनने के असबाब मौजूद भी हों। माने 3 हैं। माने कितने हैं? 3 हैं। जवाल का वक़्त कहते हैं जी कौन सा होता है? दिन के वक़्त होता है जवाल का वक़्त है। और जवाल का वक़्त कब होता है? दिन के वक़्त। लेकिन कब होता है? 12 बजे नहीं होता। 12 बजे नहीं होता। अच्छा, जवाल किस वक़्त को कहते हैं? अब ये आप विरासत से अलहदा निकलेंगे, हम फिकी मसाइल तो नहीं पढ़ रहे, बहरहाल मैं जिक्र कर देता हूं। कुछ देर के लिए सूरज जो है ना वो साकिन हो जाता है। सूरज जब सुबह तुलू होता है ना, सूरज जब सुबह तुलू होता है तो किधर से तुलू होता है? मुझे बताएं शाबाश। हमारे यहाँ तो मशरिक से होता है, किस किस के यहाँ मगरिब से होता है? कोई है जिसके इलाके में मगरिब से भी तुलू होता हो?
बताएं, हमें भी पता चले कि कौन सा इलाका है। अच्छा, मशरिक से तुलू होता है और किधर गुरूब होता है? मगरिब। तो जब सुबह सूरज, यूं ही सूरज तुलू होता है तो सूरज मगरिब की तरफ अपना सफर शुरू कर देता है। लेकिन दिन में एक वक्त ऐसा आता है कि जब सूरज एक जगह रुक जाता है। जब सूरज एक जगह रुक जाता है उसी वक्त को जवाल का वक्त कहते हैं। उस वक्त को कौन सा वक्त कहते हैं? जवाल का वक्त। ये मौसम के लिहाज से बदलता रहता है, यानी ये जो वक्त है इसका एक टाइम नहीं होता, हर रोज ये 1-2 मिनट आगे पीछे होता है, आधा मिनट आगे पीछे। 12 बजे नहीं होता, सर्दियों में ये 12 से भी पहले होता है। सर्दियों में ये किससे होता है? 12 से भी पहले होता है। और गर्मियों में ये 12 के भी बाद होता है। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि जब सूरज बिल्कुल सर पर हो, ये सिर्फ मुंह की बातें हैं। जो हकीकी बात है वो मैंने आपको बता दी कि जितनी देर सूरज एक जगह रुका रहता है, सूरज तुलू होने के बाद अपना सफर शुरू कर देता है मगरिब की जानिब। लेकिन दिन में एक वक्त ऐसा आता है जब वो एक जगह रुक जाता है, एक जगह ठहर जाता है। जब वो एक जगह रुक जाए, एक जगह ठहर जाए, उस रुकने और ठहरने के वक्फे को जवाल का वक्त कहते हैं। अच्छा जी, मवानी उल इर्स हम पढ़ रहे थे, वापस आते हैं। तो ये 3 है मवानी उल इर्स। कितने हैं? 3 है। मैं बात को मुख्तसर करके खत्म कर दूं। मवानी उल इर्स कितने हैं? 3 है। कत्ल, नंबर 1 कत्ल। मुवर्रिस को वारिस क्या कर दे? कत्ल कर दे। मुवर्रिस को कौन कत्ल कर दे? वारिस। तो उसे, बस आखिरी बात जी, क्लास खत्म होने लगी है, बस आखिरी बात, मुवर्रिस को वारिस कत्ल कर दे तो अब वारिस को कुछ भी मिलेगा नहीं। वारिस को कुछ भी मिलेगा नहीं। अगर मुवर्रिस को कोई कत्ल कर दे तो उसे कुछ भी मिलेगा नहीं। ठीक है जी। तो ये है जी कत्ल, ये है जी कत्ल। कत्ल के बाद क्या है जी? इख्तिलाफुद्दीन। और उसके बाद है तीसरा माने क्या है जी? इधर ऊपर लिखे होंगे, कत्ल है और इख्तिलाफुद्दीन है और रिक्का है। चलें, बहरहाल टाइम हो गया तो हम इसको कल इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।